Assalamu alaikum. मेरा नाम आरिफ मंसूरी है and I'm the host of The Mansoori Show, the show that is best described as मिलाऊंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा. Your link to everything Pakistani, straight from California, The Mansoori Show. नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से है. जैसा कि आप जानते हैं 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि तमाम पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे पाकिस्तानी मुकीम हैं बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाया जाता है. इस साल भी अमेरिका के तमाम बड़े शहरों में जश्न आज़ादी पाकिस्तान की तकरीबात मुनक़्क़िद हुई और सब्ज़ हलाली परचम लहराया गया. हमारी आज की रिपोर्ट में 2 तकरीबात शामिल हैं. पहली तकरीब जो कि कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान लॉस एंजलिस जनाब अब्दुल जब्बार मेमन साहब की रिहाइशगाह पे वाक़ हुई और दूसरी तकरीब जिसका इनेकाद सैन डिएगो में पाकिस्तानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सैन डिएगो ने किया. तो आइए पहली तकरीब की झलकियाँ मुलाज़ा फरमाएँ. इस तकरीब का आगाज़ जनाब इस्माइल खीकी भाई की रूह परवर तलावत कलाम मजीद से हुआ. मुलाज़ा फरमाइए. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ladies and gentlemen, we are lucky to have U.S. Congressman Mr. Tony Cardenas amongst us. I shall invite him to say a few words on the occasion. Mr. Tony Cardenas. Thank you very much. I just wanted to be here this morning to make sure that we all remind ourselves how blessed we are to be right here in this place right now. When it comes to Independence Day, for many countries, it's a very emotional day because we think about the good and the bad. We think about the bloodshed that it took and the sweat and the tears for that independence to come. But we also think about why people shed that blood and fought so hard for that independence. And it is about freedom. Not just freedom physically, but freedom of the heart. And that's one of the reasons why I'm so blessed that my parents came from another country to come here so that their children could have more than they could ever dream of. My parents came from a country where there were no schools in their town. And they only reached the 1st and 2nd grade between the two of them. But many years later, when they got married, they realized that nothing had changed since they were little boys and girls. So they came right here to California, to the United States, after being married in their country, and they started a family. A big family, 11 children, and I'm the youngest. And one thing that I'm reminded of as I look at many of us today is that I was blessed and burdened with being the darkest in my family. And I say that because when I walked the streets, I was treated differently, sometimes by officials, sometimes by just individuals. When I used to go to school, sometimes the teacher would sit me in the back of the class because he or she assumed that I was not good enough to sit in the front of the class. And sometimes I was actually told by people who were supposed to teach me and nurture me right here in America that I was not good enough. But fortunately for me, I was able to overcome much of that. And I share this with you is because right now, on the biggest stage in the world, the presidency of the United States, there's at least one person who doesn't understand that us having differences does not make one person better than the other. That us being of a different faith doesn't make one person better than the other. What makes us who we are is what we do and what we say and what's in our hearts.
Thank you very much, Mr. Cardenas, for the wonderful remarks. Now I shall request Consul General of Pakistan, Mr. Abdul Jabbar Memon, to kindly come and hoist the flag of Pakistan while the national anthem of Pakistan will be played. And now the messages from the President and the Prime Minister of Pakistan will be recited. A message from Mr. Mamnoon Hussain, President, Islamic Republic of Pakistan. My dear countrymen, today we are celebrating our Independence Day with a new zeal and vigor. I am confident that our determination will pave the way for political, economic, and social stability in the coming days. Our country has been confronted with many challenges since the last few years, but the nation has boldly faced them through its unshakable resolve. Now, message from Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Muhammad Nawaz Sharif. My dear countrymen, this year, the day of 14th August, besides the traditional pleasure, also carries deep feelings of grief. The pain of Quetta martyrs is still fresh. Today, we are also remembering those martyrs who sacrificed their lives to protect this independence. Happy Independence Day. Thank you very much, Councilman, for having me. Thank you. And now I shall request the Consul General of Pakistan, Mr. Abdul Jabbar Memon, to kindly come and say his remarks on the occasion. Mr. Abdul Jabbar Memon. Honorable guests, ladies and gentlemen, good morning and assalamu alaikum. It gives me a great pleasure to welcome you to commemorate the 69th anniversary of Pakistan's Independence Day. This day reminds us of the immense sacrifices rendered by the Muslims of the subcontinent under the leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of the nation, to secure a separate homeland where they could live in peace and fashion their lives in accordance with their beliefs and ideals. We are honored by the presence of Pakistani American community members for joining us to celebrate Pakistan's Independence Day. I am particularly delighted to recognize the presence of US Congressman Tony Cardenas. Ladies and gentlemen, internally this past year has been particularly significant and consequential period for Pakistan. On the economic front, growth started to pick up momentum with increasing foreign exchange reserves, declining inflation, rising investor confidence, and improved energy situation. Distinguished guests, I am happy to report that during the past 3 years, I have seen our bilateral relations with USA gain greater depth, understanding, and momentum. Advancing peace, securing stability, combating terrorism, promoting freedom and democracy, investing in economic development and prosperity, and confronting the global threats posed by violent extremism in the broader region are among the vital areas where Pakistan and US have shared interests. Thank you, all of you, ladies and gentlemen, for joining us in celebrating the Independence Day of Pakistan. Long live Pakistan-US friendship. Long live Pakistan. कितने सितारों की झुरमुट में सूरज बनकर आया हो, सूरज बनकर आया हो, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान
अस्सलाम वालेकुम। मेरा मैसेज है सारे पाकिस्तानी अमेरिकन्स को, आज पाकिस्तान की जश्न आज़ादी का दिन है। सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। कैलिफोर्निया में पाकिस्तानी अमेरिकन डे जो है वो रिकग्नाइज़ किया जाता है एट द स्टेट सेनेट लेवल। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है जो कि एक स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में हो रही है और पिछले 2 साल से हो रही है और इंशाल्लाह अगले कई सालों तक और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी रहेगी ये होती रहेगी। सो इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हैव दिस टू बी रिकग्नाइज्ड इन द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया दिस पाकिस्तानी अमेरिकन डे, और सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान के 70th बर्थडे पे और यौम आज़ादी पे हम सब बहुत खुश हैं और पाकिस्तान ऐसे ही आगे भी तरक्की करता रहे और ये जो मुश्किलात आई हुई हैं आजकल पूरे हिस्से पे, पूरे खित्ते पे और पाकिस्तान पे, वो ख़त्म हो और पाकिस्तानी नेशन एज ए वेरी डिस्टिंग्विश्ड और सक्सेसफुल नेशन बन के सामने आए। सबके पाकिस्तानियों की हर जगह पे ये दुआ है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, जश्न आज़ादी मुबारक। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान की हूँ। मैं यहाँ अमेरिका में हूँ लेकिन मैं फिर भी पाकिस्तानी हूँ। जिस तरह मैंने पाकिस्तान में जश्न आज़ादी मुबारक बनाया था, यहाँ भी ऐसे ही है और मैं हमेशा पाकिस्तान की रहूँगी चाहे मैं कहाँ भी हूँ। जश्न आज़ादी मुबारक। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाई बहनों को जश्न आज़ादी मुबारक। हम आज यहाँ कौंसल जनरल अब्दुल जब्बार मेमन और शैला भाभी के घर में आए हैं जश्न आज़ादी मनाने के लिए। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे, हमारे मुल्क को हमेशा हर आफत मुसीबत से पाक रखे, टेररिस्ट लोगों से पाक रखें और दुनिया की बद नज़रों से पाक रखें, हमारे मुल्क को आबाद रखें और हमारे तमाम हुक्मरानों को अल्लाह ताला उनको ये जो है सलाहियत दे और उनको ये समझ दे कि हमारे मुल्क को आगे लेकर चलें। इस वक्त मेरे साथ परवेज़ लोधी साहब मौजूद हैं जो कि एक वेरी वेल नोन फिलंथ्रोपिस्ट हैं। ही हैज़ बीन इन्वॉल्व विद द HDF पॉलिसी एंड राइट नाउ ही इज़ इन्वॉल्व विद द पॉवर्टी एलिविएशन। आइए इनसे मालूम करते हैं कि आज इनको ये यौम आज़ादी पाकिस्तान पे इनके क्या तासुरात हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। एक करेक्शन मैं आपको कर दूं, मैं PHDF या पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट जो कि गवर्नमेंट के साथ प्रोग्राम है उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। ये आज बड़ा 70th इंडिपेंडेंस डे पे यहाँ आप लोग सबके साथ सेलिब्रेट करते हुए बहुत अच्छा फील हो रहा है। पाकिस्तान बनने के लिए बहुत कुर्बानियाँ हुई और मेरी क्योंकि प्री पाकिस्तान पैदाइश है तो मैं तो देख सकता हूँ कि ये सारी कुर्बानियों का क्या नतीजा आ रहा है और अल्लाह करे कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क रहे जैसे पहले हमेशा रहा है। आप देख रहे हैं कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान लॉस एंजलिस जनाब अब्दुल जब्बार मेमन की रिहाइशगाह पे मुनक़्क़िद होने वाली जश्न आज़ादी पाकिस्तान की तकरीब की झलकियाँ। प्रोग्राम में अब वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, देखते रहिए। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू द मंसूरी शो। आप देख रहे हैं कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान लॉस एंजलिस जनाब अब्दुल जब्बार मेमन की रिहाइशगाह पे मुनक़्क़िद होने वाली जश्न आज़ादी पाकिस्तान की तकरीब की झलकियाँ। इस तकरीब के बाद हम आपको ले चलेंगे सैन डिएगो कैलिफोर्निया जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको के बॉर्डर पे वाक़ है और वहाँ पर पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ सैन डिएगो के ज़ेर एहतमाम एक बहुत अच्छा पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे या यौम जश्न आज़ादी पाकिस्तान मनाया गया। तो आइए लेट्स कंटिन्यू वाचिंग। Pakistan Zindabad would like to wish a very happy Independence Day to Pakistan. आप सबको पाकिस्तान बनने की बहुत बहुत मुबारक हो और एग्जिस्ट करने की मुबारक हो। Pakistan Zindabad. I wanted to wish Pakistan a very happy Independence Day. I'm Dr. Naseem Malik, MD, PhD, and I'm also president of PACC, Board of Members. And so we are celebrating today at the residence of Consul General Pakistan, Los Angeles. So we should not forget the people who was
शहीद हुए जो, और वो उनका वजह से आज एक पाकिस्तान जो है बना। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो सबको। थैंक यू टू अब्दुल जब्बार मेमन, काउंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान, फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। पुरमसरत मौके पर मैं पाकिस्तानी तमाम पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये मैसेज जा रहा है, इंडिपेंडेंट डे की मुबारकबाद कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। चाहे वो 23 मार्च हो या 14 अगस्त हो, हम अपनी सकाफ़त को भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं। पाकिस्तान हमने बहुत मुश्किल से लिया हुआ है, बहुत जानों का सरमाया गया हुआ है। और अमेरिका में एक अच्छी बात यह है कि पूरी कम्युनिटी दे गेट टुगेदर, सारी कम्युनिटी इकट्ठी होती है और हम सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन डबल मुबारक हो, इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट मैच भी जीत गया इंग्लैंड से। बहुत खुशी का मौका है और उम्मीद है कि पाकिस्तान को और खुशियाँ मिलें। भाईजान, हमारी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक आज इस 14 अगस्त के मौके पे, एंड थैंक यू वेरी मच। इट्स अ रियली ग्रेट डे एंड ऑल फ्रेंड्स वी आर एंजॉयिंग इट हियर। थैंक यू। आप लोग जो यहाँ बैठे हो, ये मेरा पाकिस्तान है। ये वाइब्रेंट एंड डायनेमिक कम्युनिटी रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तान। तो कहने का मकसद है नट से कि आप एतमाद रखें। ये जो हमारे फौजी बेचारे शहीद हुए हैं, ये जो हमारे बच्चे स्कूलों में शहीद हुए हैं, ये जो मेरे बेगुनाह लोग शहीद हुए हैं, इनकी कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक दफ़ा फिर रीइमर्ज होगा, वेरी प्रोग्रेसिव, हाईली पीसफुल कंट्री। और इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया में कंट्रीब्यूट करने वाली कौम है और कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। बहुत बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त मेरे साथ कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब जब्बार मेमन साहब मौजूद हैं, और आइए इनसे हम पूछते हैं कि आज सैन डिएगो में पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया गया, उसके बारे में ये इनके तासुरात। बड़ी मेहरबानी। मैं ये जो पाकिस्तान एसोसिएशन, अमेरिकन एसोसिएशन सैन डिएगो है, उनके रहमानी साहब और उनकी मिसेस जो ये रू रवा हैं इस तकरीब के, आज इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही आला किस्म की तकरीब का इंतज़ाम किया हुआ था और उसमें हमने जश्न आज़ादी खूब अच्छे तरीके से मनाया है। और यही वो जज्बा है, यही वो जो है पैगाम है जो हम यहाँ से परदेश में बैठ के भी अपने पाकिस्तान के यानी कि जो मकीन है उनको भी देते हैं कि ये जो हमारा मुल्क है, इंशाअल्लाह ताला ये सारे मसाइल को इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपने जदोजहद के साथ, हमारे मिलिट्री और हमारे आम आदमी की कुर्बानी के साथ इंशाअल्लाह ताला हम अपने मसाइल पर कंट्रोल कर लेंगे और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला फिर इंशाअल्लाह ताला रीइमर्ज होगा एक बहुत ही पीसफुल और एक बहुत ही प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की हैसियत में इंशाअल्लाह ताला। रहमानी साहब, मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि आज सैन डिएगो में जो जश्न आज़ादी है पाकिस्तान मनाया गया, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के आप रू रवा हैं,
आप हमें बताइए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये कब से कर रही है? माशाल्लाह ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अभी नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तस्नीम फ़ारूक रहमानी ने, और वही इसकी रूह रवां हैं और उनका पूरा बोर्ड, और मैं साइड लाइन्स पे उनको बैकअप करता हूँ ताकि ये प्रोग्राम वगैरह होते रहें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तस्नीम रहमानी है और मैं यहाँ पाकिस्तानी एसोसिएशन है जो पसंद, उसका स्टैंड फॉर पाकिस्तानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सैन डिएगो है, उसके मैं फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ। उसके तहत ये हम पाकिस्तान डे मना रहे हैं आज यहाँ पर। मैं यहाँ पर लास्ट 25 ईयर्स से जो है यहाँ पर रह रही हूँ सैन डिएगो में, और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वॉलंटियर काम करती रही हूँ, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर हैं इस्लामिक रिलीफ केयर और दिल, जो भी ज़िंदगी ट्रस्ट जो शहजाद रॉय की है उसके लिए भी मतलब हम लोग वॉलंटियर वर्क करते रहे निस्वा के लिए। लेकिन अब ये जो पिछले साल से हमने कोशिश की और इस साल हमारी ये पसंद जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके तहत हम डिफरेंट प्रोग्राम जो हैं इसके तहत चला रहे हैं, जिसमें जो है हम मुस्लिम वीमेन की 2 हम इंटर्नशिप जो है होमलैंड सिक्योरिटी से अप्रूव करवाई हैं, वो सैन डिएगो से दिसंबर 2016 को शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा विमेन शेल्टर है, उर्दू लैंग्वेज के क्लासेस हैं, और अगर पाकिस्तान में किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है और हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं तो हम ज़रूर उनके लिए यहाँ से मेहनत करेंगे और आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, और हमें दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर बात करें। Just really enjoying the Pakistan Independence Day. हमें बहुत मज़ा आ रहा है, हम इधर आए हैं पाकिस्तान डे मनाने और काफ़ी देर से आए हैं, खाना भी है और गाने भी हैं और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बस आए हुए हैं। We've been having a great time. Thank you. ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में ही है, जैसे हम पाकिस्तान में हम सेलिब्रेट करते थे ऐसा लग रहा है यहीं पे हम ऐसा सेलिब्रेट कर रहे हैं। The music and everything is playing, so we're having a lot of fun. Thank you so much. Would you like to say something about Desi Vesi and our photo booth? And the photo booth is very colorful. It looks very lovely. Yeah, they've got props with different sayings and everything for pictures. Everybody's out. We're holding the signs and we're just having a great time. Keep supporting Desi Vesi. Of course, of course. जी माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था सैन डिएगो की कम्युनिटी और पसंद ऑर्गेनाइजेशन ने, तो मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में भी ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे। माशाल्लाह इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा इवेंट था एंड वी होप कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए एंड यहाँ पे छोटी सी पाकिस्तानी कम्युनिटी है एंड ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं लॉस एंजलिस से फ़र्स्ट टाइम सैन डिएगो आई हूँ यहाँ 14 अगस्त के मेले के सिलसिले में, और मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की कम्युनिटी, बहुत अच्छा रिस्पांस था माशाल्लाह, लोग बहुत अच्छे हैं और जिस जोश और जज्बे के साथ इन्होंने 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया है, आई रियली अप्रिशिएट, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंशाल्लाह मैं आइंदा भी सैन डिएगो आऊँगी। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान 14 अगस्त के हवाले से तो आई थिंक ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से भी बहुत मेहनत की गई, बच्चों ने बहुत मेहनत करी है और अच्छा मिली नगमे सुनने को मिले, तो आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल डे फॉर अस, और होपफुली अगले साल और उससे अगले साल ये होता रहेगा। यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त फराद तिरमिज़ी साहबा मौजूद हैं जो कि एरिज़ोना से आज सैन डिएगो तशरीफ़ लाई हैं। इस तकरीब में कपड़ों की इन्होंने अपना स्टॉल लगाया। आए इनसे पूछते हैं कि इनको आज की तकरीब कैसी लगी। बहुत अच्छी रही और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे गाने हुए, पाकिस्तानी आए, बहुत मज़ा आया और ख़रीदने वाला क्राउड भी था, इसलिए भी बहुत अच्छा दिन गुज़रा। तो सबको पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम मदिहा शाह है और आज हम यहाँ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में सैन डिएगो पावे कम्युनिटी सेंटर में हैं और देसी वेसी फोटो बूथ पे मैं खड़ी हूँ। दिस वाज माय आइडिया 10 days बैक। वी थॉट कि व्हाई नॉट हम एक पाकिस्तानी कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए एक बूथ लगाएं, जिसके अंदर हमने ये फ़ोटो बूथ अरेंज किया है और हमने एक ठेले वाले के नाम से फूड बूथ साथ में लगाया है। प्लीज़ जॉइन अस एंड प्रमोट पाकिस्तानी कल्चर हेरिटेज इन अमेरिका एंड फील प्राउड टू बी अ Pakistani American. Happy Independence Day. Today's event was a hit and we really enjoyed and we had a lot of fun. Yeah. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Today was a great day and we were all singing and dancing and there was really good food
I love Pakistan. Pakistan Zindabad. सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। शुक्रिया पाकिस्तान। नाज़रीन, आपने हमारी रिपोर्ट मुलाज़ा फरमाई जो कि जश्न आज़ादी पाकिस्तान की तकारीब के हवाले से थी। जश्न आज़ादी की तकारीब का सिलसिला 14 अगस्त के बाद कई हफ्ते तक यहाँ चलता रहता है और लॉस एंजल्स में कई सालों से एक बहुत बड़ी तकरीब जो कि 15 से 20 हज़ार लोग अटेंड करते हैं USC एक्सपोजिशन पार्क में होती है। और इस साल ये तकरीब 3 सितंबर सैटरडे 3 सितंबर को है, दोपहर 3 बजे से रात 12 बजे तक। ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए। आपके स्क्रीन पे जो एड्रेस है उस पे हम अपना फ़ीडबैक, अपनी आरा भेजते रहिए। और हमारी प्रोग्राम की पिछली एपिसोड्स देखने के लिए प्लीज़ विज़िट pakistanlink.com/ARY। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।